Today we will learn about your next lesson, Microsoft Outlook. ओके, आउटलुक को स्टार्ट करने के लिए हमें हमारा खुद का ईमेल अकाउंट होना जरूरी होता है. ओके, बट अगर आपके पेरेंट्स का भी हो तो भी चलेगा. ऐसा नहीं कि आपका खुद का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, देन व्हाट इज द MS Look? MS Look means Microsoft Outlook. MS Look means Microsoft Outlook. Okay. Microsoft Outlook is a program which is part of Microsoft Office suite. Microsoft Office किसका, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है और प्रोग्राम है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है. जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करते हो, व्हेन यू डाउनलोडेड दी MS ऑफिस, तो उस इन दैट ऑफिस वेरियस प्रोग्राम्स आर देयर. फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, वैसे ही उसमें होता है MS आउटलुक, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक. ओके, it is a personal information management. Outlook help us to organize our daily schedule whether at home or at office. Okay, आउटलुक की हेल्प से हम हमारे डेली के जो शेड्यूल होते हैं घर के और ऑफिस के, वो आउटलुक की हेल्प से हम उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. Outlook is used for send and receive emails from your email account without logging on the mail service provider website. MS Outlook हम क्यों यूज करते हैं? ईमेल्स को सेंड एंड रिसीव करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज करते. ओके, Outlook is used for send and receive emails from your email account without logging on the mail service provider website. Okay, for example, आपको अगर आपका ईमेल में से कोई किसी आपके फ्रेंड को ईमेल सेंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले आपको अपना गूगल में जाके जीमेल अकाउंट को साइन इन करना पड़ता है. ओके, बट आउटलुक में हमें सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, उसमें हमें लॉगिन नहीं करना पड़ता. आउटलुक में हमें लॉगिन नहीं करना पड़ता. ओके, देन आई एम जस्ट रीडिंग. Microsoft Outlook is an application that is used mainly to send and receive emails. मैंने अभी बोला Microsoft Office क्या है? एक एप्लीकेशन है. और वो क्यों यूज करते हैं हम? सेंड एंड रिसीव ईमेल्स करने, मेल्स को सेंड एंड रिसीव करने के लिए हम MS Outlook यूज करते हैं. It can also be used to manage various types of personal data, including calendar appointments and similar entries, tasks, contacts, and notes, as well as making reminders and tracking activity. Okay, MS Look यूज करके हम हमारे जो डेली के शेड्यूल्स होते हैं वो भी हम उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ओके, Outlook is a popular email client used in enterprises. Its popularity keeps on increasing due to the feature-rich functions and its ability to keep an in sync and mobile and embedded system. Okay, Outlook में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो हम ईमेल में नहीं यूज करते. ओके, Microsoft Outlook was introduced to the public in 1997 and was included with Microsoft Office 97. Microsoft Outlook कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ. और वो किसमें इंक्लूड था? Microsoft Office 97 में वो Outlook इंक्लूड किया हुआ था. ओके, Outlook Express was included in Microsoft XP and was the only free version. ओके, तो विंडोज XP में कौन सा क्या इंक्लूडेड था? आउटलुक एक्सप्रेस. और जब वो इंट्रोड्यूस हुआ तो वो
आउटलुक एक्सप्रेस फ्री वर्जन था, हम फ्रीली उसे यूज कर सकते थे. ओके, since then Microsoft has released an abundance of an updated version, each offering more features than the ones before it. Microsoft Outlook is included in many of the Microsoft Office application suites, including various versions Microsoft Office 10, 13 and 16 and Office 365. तो Microsoft Outlook आपको Microsoft Office के अलग अलग वर्जन्स में मिलता है, जैसे कि Microsoft Office 2010 में भी आपको Outlook 10 मिलेगा. Office 2013 में आपको Microsoft Outlook 2013 मिलेगा. ओके, तो ये अलग अलग वर्जन है. ऑफिस के जैसे अलग अलग वर्जन है, वैसे आउटलुक के भी अलग अलग वर्जन है. ओके, देन सी दिस इज योर आउटलुक एक्सप्रेस. इसे हम बोलते हैं आउटलुक एक्सप्रेस. दिस इज द आउटलुक विंडो. ओके, next, then what is the features of Outlook? Outlook has many features. First feature is the mail. Okay, first feature कौन सा है हमारा Outlook का? Mail. The mail component of Outlook act as the email client application and allows you to manage your email account. Okay, तो mail component of Outlook का first component कौन सा है? Mail. Okay, वो कैसे एक्ट होता है? वो ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन. ओके, और वो क्या अलाउ करता है? हमारा जो ईमेल अकाउंट है उसको वो मैनेज करता है. ओके, यू कैन राइट एंड सेंड ईमेल्स, रीड रिसीव ईमेल्स एंड स्टोर द ईमेल्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस. हम एमएस आउटलुक के जो हम मेल, फर्स्ट फीचर है मेल, उसमें हम ईमेल्स को रीड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. ओके, और जितने भी मेल्स आए उसको स्टोर भी कर सकते फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए. Outlook can function as an email client connection to the Microsoft Exchange server using a property protocol, as well as to standard mail server using POP3 and IMAP protocol. Okay, then what is the protocol? Protocol is a standard set of rules that allows electronic devices to communicate with each other. Then POP3, आप जब भी अपना जीमेल अकाउंट आउटलुक से कनेक्ट करते हो तो आपको ये दोनों सर्विसेज का यूज करना पड़ता है, POP3 एंड IMAP. ओके, POP3 मीन्स क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज द स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल client. POP3 allows you download email messages on your local computer and read them even when you are offline. POP3 क्या करता है? POP3 क्या अलो करता है? आप ईमेल के मैसेजेस डाउनलोड कर सकते हो. अपना जो लोकल कंप्यूटर मीन्स हमारा जो पीसी होता है उसे हम वो मैसेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, उसे रीड भी कर सकते हैं. कब? जब हम ऑफलाइन रहेंगे. सपोज आप ऑफलाइन हो तो तब भी उस टाइम पे भी आप वो ईमेल मैसेज को रीड कर सकते हैं. ओके, देन व्हाट इज द IMAP? IMAP client synchronizes the email on your computer with the content of your account on the email server. ओके, जैसे ही हम हमारा जीमेल अकाउंट आउटलुक से कनेक्ट करते हैं तो हमारे जीमेल अकाउंट में कैसे इनबॉक्स, ड्राफ्ट, चेंज, वो सब कंपोनेंट्स होते हैं. तो वो सब कंपोनेंट्स हमें कहाँ पे शो होता है? वो आउटलुक के स्क्रीन पे. तो किसकी हेल्प से होता है? IMAP की हेल्प से होता है. ओके, नोट, IMAP ensures that emails are synced across your multiple devices. Okay. On the other hand, POP3 downloads email from server to a single device and delete it from the सर्वर. ओके, अगर हमने सेटिंग में POP3 यूज किया तो क्या होता है? हम सर्वर से
सिंगल सर्विस पे कोई भी ईमेल हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड इट फ्रॉम द सर्वर. ओके, then next feature is a calendar. The calendar component of Outlook enables you to manage your schedule easily. Okay, Outlook का जो next features है calendar component. तो calendar component के हेल्प से हम हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं उसे हम इजीली मैनेज कर सकते हैं. You can create, view and manage appointment, meetings and vacations. Calendar can be displayed in 3 modes. First is a day view, second is a week view and third is a month view. Okay, so calendar function is the most important feature. Okay, after marking your appointments and events on the calendar, you can add the sound message as a reminder. जैसे हम कैलेंडर में कोई भी अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, कोई भी अपॉइंटमेंट को मार्क करते हैं कैलेंडर में, तो उस टाइम हम उसे साउंड, उस अपॉइंटमेंट में हम साउंड और मैसेज भी एज अ रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. Calendar items can be colored for easy identification. You can display the calendar in 3 different views: day, week, work week and month. Calendar का व्यू डिफरेंट व्यूज में डिस्प्ले होता है, डे व्यू में, वीक व्यू में, वर्क वीक व्यू में एंड मंथ व्यू में. दिस इज योर, ये जो कैलेंडर, ये जो हम फीचर्स देख रहे हैं वो सब प्रैक्टिकली भी हम बाद में देखने वाले. ओके, then third feature is the contact. Third feature is the contact. The contact component of Outlook allows you to create a list of all your contacts and store various pieces of information for them. Okay, तो contact component में क्या करते हैं हम एक लिस्ट, हमारे कॉन्टेक्ट की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट में अभी हम मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी नंबर सेव करते तो वो पूछता है आपसे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन मोबाइल नंबर, आपको कहाँ पे सेव करना है, वो ऐसे पूछता है. बट आउटलुक में जो एक कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है वो आपको आपका नेम, नंबर, एड्रेस, जॉब टाइटल, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल करता है. ओके, Outlook comes with a powerful personal contacts database. Besides email addresses, you can use it to store various pieces of information such as job titles, phone numbers, addresses and notes for each of your correspondence. Okay, मैंने अभी बोला कि वो आपको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी अवेलेबल करता है. Okay, next feature is a task. You can the task tool assist you to maintain a to-do list easily. It helps you to record the task of your various duties and projects. You can set priority and due date of each task. Okay, तो टास्क टूल हमें क्यों यूज करते हैं? हमने जो भी प्लानिंग किए है उसकी प्लानिंग किए है उसका लिस्ट वो मेंटेन करने में टास्क टूल हम यूज करते हैं. यू कैन मेंटेन अ लिस्ट ऑफ टास्क दैट यू कैन प्लान ऑन डूइंग यूजिंग अ टास्क कंपोनेंट थ्रू. अगर हमें कोई भी, हमने जो भी प्लानिंग की है उसकी लिस्ट मेंटेन करनी तो हम कौन सा टूल यूज करेंगे? टास्क टूल. नेक्स्ट फीचर tool is a journal tool. You can keep track of your activity using a journal tool. Journal tool की हेल्प से हम जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं उस पे हम उस एक्टिव को हम ट्रैक कर सकते हैं. ओके, journal can automatically record all the emails you are sent and received. Okay, journal क्या करता है? ऑटोमेटिक हमने जितने भी ईमेल्स को सेंड किए हैं, रिसीव किए, उसे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है. कौन सा टूल? जर्नल टूल. एंड कीप ट्रैक ऑफ हाउ लॉन्ग यू
spent in other Office program like Word, Excel and PowerPoint. ओके, और वो क्या करता है, हमने कितना टाइम ऑफिस के दूसरे प्रोग्राम्स मीन वर्ड में स्पेंड किया है, एक्सेल में स्पेंड किया है, उसका उसे भी वो ट्रैक करता है. ओके, देन नेक्स्ट फीचर इज द notes. Next feature is the notes. Notes is also a tool. The notes tool provides an electronic version of the post it sticky notes. सबको sticky notes पता है? Yes. तो वैसे ही आउटलुक में भी हम नोट्स टूल यूज करके कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट नोट्स विद डिफरेंट कलर्स एंड सेट रिमाइंडर्स फॉर ईच इंडिविजुअल नोट्स. ओके, तो नोट्स टूल में हम हमारे नोट्स क्रिएट भी कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स में भी वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं. ओके, दिस इज द फीचर्स ऑफ आउटलुक. तो कौन से फीचर्स है? फर्स्ट फीचर इज मेल, सेकेंड इज अ कैलेंडर, थर्ड इज अ कॉन्टैक्ट, फोर्थ इज अ task, fifth is a journal and sixth is a note. These are the features of the outlook. Okay, then how to start at the outlook. Okay, तो outlook कैसे start करेंगे हम? ओके, हाउ कैसे आउटलुक को कॉन्फ़िगर करेंगे? योर फर्स्ट एक्शन इज टू सेट अप योर आउटलुक अकाउंट. ओके, आउटलुक को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? हमारा जो जीमेल का अकाउंट है उसे कनेक्ट करना पड़ता है. किससे? हमारे आउटलुक अकाउंट से वो कनेक्ट करना पड़ता है. ओके, after that you will be ready to start receiving and sending emails. Use the calendar, create contacts and work with the outlook task. उसके बाद हम आउटलुक यूज कर सकते हैं. ओके, तो कैसे हम आउटलुक को कनेक्ट, हमारे जीमेल अकाउंट को आउटलुक से कनेक्ट कर सकते हैं? नाउ आई एम शोइंग दिस. फर्स्ट, ओपन योर email account. Just a minute. Now I am opening a email account. Just a minute. See, मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया है, उसे ओपन किया मैंने. ओपन इट, देन गिव द पासवर्ड. Okay, then next. First, open your Gmail account. My email account is opening. हमें पहले जीमेल अकाउंट में 2 सेटिंग्स करनी पड़ती, उसके बाद हमें आउटलुक ओपन करना है. ओके, सी, इसमें मेरा एक ही मेल है, एक ही मेल आया है इस अकाउंट में मेरा. ओके, तो पहले क्या करना है? गो टू द सेटिंग. ये आपको दिख रहा है, सेटिंग का साइन दिख रहा है. गो टू द सेटिंग.
Then after that, see all settings. Click on see all settings. After that, find just a minute. See, this is the account. Then click on the settings. Then click on see all settings. सेटिंग में जाने के बाद आपको फाइंड करना है, ऐसी ये दिख रहा है आपको सेटिंग का पेज। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है फॉरवर्डिंग एंड पॉप एंड IMAP. क्लिक ऑन दी फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP टैब। ओके, आपको क्या कौन सा टैब क्लिक करना है? फॉरवर्डिंग एंड पॉप स्लैश IMAP टैब को क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू कैन सी IMAP एक्सेस दिख रहा है आपको, स्टेटस IMAP इज एनेबल। आपको ये एनेबल IMAP को एनेबल करना है। रेडियो बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, IMAP को एनेबल करना है। आफ्टर दैट दी सेव दी चेंजेस। ओके, ये IMAP को एनेबल करने के बाद आपको चेंजेस आपने जो भी चेंजेस किए उसे सेव करना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट सेटिंग ऑफ जीमेल अकाउंट। उसके बाद आपको ये अकाउंट का सिंबल दिख रहा है, जी गूगल अकाउंट। देन क्लिक इट एंड मैनेज यूर गूगल अकाउंट। फिर आपको कहाँ पे जाना है? मैनेज यूर गूगल अकाउंट। आफ्टर दैट गो टू द सिक्योरिटी। आपको कहाँ पे क्लिक करना है? सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपको यहाँ पे नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिखता है लेस सिक्योर एप्स एक्सेस। ओके, ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो आपका ऑफ होगा तो वो ऑप्शन आपको ऑन करना है। ओके, ये आपको ऑन करना है। ओके, तो ये दो सेटिंग आपको आपके जीमेल अकाउंट में करनी है। ओके, यहाँ पे ऑन करना है। ओके, देन क्लोज योर ईमेल अकाउंट। उसके बाद ओपन योर आउटलुक 2016 और 2010। आपके कंप्यूटर में जो भी वर्जन होगा वो ओपन करो। ओके, तो आप जैसे ओपन करते हो आउटलुक, जैसे आप ओपन करते हो तो आपको फर्स्ट पेज जैसे ओपन होता है तो आपको ऐसा एक विंडो दिखता है, ऐड अकाउंट का एक विंडो दिखता है। सी, आपको एक ऐसा
विंडो दिखता है, मेरा डायरेक्ट ओपन होगा क्योंकि मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर किया है, इसीलिए। आपने अगर कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा तो आपको एक ऐसा अकाउंट, ऐसा एक विंडो दिखेगा, ऐड अकाउंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, नाउ आई एम शोइंग द आउटलुक। सी, जैसे ही मैंने ओपन किया तो आपको कहाँ पे जाना है, फाइल में जाके अकाउंट सेटिंग। ओके, जैसे मैंने अकाउंट सेटिंग में गई तो मुझे वो विंडो मिलेगी। कौन सी विंडो मिलेगी, एड अकाउंट वाली विंडो मिलेगी। सी, मैंने अभी दिखाया आपको एड अकाउंट, देन सिलेक्टिव मैन्युअल सेटअप। ओके, फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, मैन्युअल सेटअप एंड देन नेक्स्ट। देन अगेन आपसे वो पूछेगा चूज सर्विस का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, उसमें वो पूछेगा outlook.com और पॉप और आईमैप। देन सिलेक्ट द पॉप एंड आईमैप, क्योंकि हमने जीमेल अकाउंट में कौन सी सेटिंग की है, आईमैप की। ओके, तो हमें कनेक्ट टू पॉप और आईमैप ईमेल अकाउंट, हमने आईमैप ईमेल अकाउंट को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, उसके बाद आपको एक आईमैप अकाउंट की सेटिंग के लिए एक फॉर्म मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालो, उसके बाद ईमेल आईडी डालो, after that select is IMAP, incoming service is imap.gmail.com, then outgoing mail server smtp.gmail.com। ओके, यहाँ पे पासवर्ड डालो, आपका ईमेल अकाउंट का जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है। देन गो टू द मोर सेटिंग, कहाँ पे जाना है, मोर सेटिंग पे। देन क्लिक ऑन द आउटगोइंग सर्वर, यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स को चेक करना है, माय आउटगोइंग सर्वर रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, सिलेक्ट इट। आफ्टर दैट गो टू द एडवांस टैब एंड देन सिलेक्ट। सी, आपको दिख रहा है यूज द फॉलोइंग टाइप्स एनक्रिप्टेड कनेक्शन, यहाँ पे आपको SSL सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक वो इनकमिंग सर्वर आपको बताएगा 993। उसके बाद आउटगोइंग सर्वर के यहाँ पर भी आपको SSL सिलेक्ट करना है और उसको यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, 465। कौन सी डालनी है, 465। और यहाँ पे रूट फोल्डर पाथ डालना है कैपिटल इनबॉक्स एंड देन ओके। ओके प्रेस करने के बाद गोइंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपको फिनिश की स्टेप दिखाएगा, उसके बाद वो आपको सी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको पीपीटी में दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। कनेक्ट करने के बाद आपको वो, जैसे ही हम यहाँ पे ओके करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसी स्टेप बताती है, फिनिश की स्टेप आती है। जैसे ऐसे ये फिनिश होने के बाद आपका ईमेल अकाउंट आउटलुक से कनेक्ट हो जाता है। ओके, और कनेक्ट होने के बाद आपको ऐसी वाली विंडो डिस्प्ले होती है। आपको ऐसी वाली विंडो ओपन हो जाती है। सी, यहाँ पे दिख रहा है, सी मैं ओपन करके दिखाती हूँ फिर से। जस्ट अ मिनट। जैसे ही आपका जीमेल अकाउंट कनेक्ट होता है तो आपको यहाँ पे आपके
ईमेल का ये आता है, सी दिख रहा है, मैंने मेरे अकाउंट कनेक्ट किया bhagyashree.khasne@gmail.com, ओके, एंड डैश आउटलुक मीन्स आपका अकाउंट आउटलुक से कनेक्ट हो गया। फिर आपके अकाउंट में, आपके जीमेल अकाउंट में जितने भी मेल्स आए हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, सी डिस्प्ले हुए इनबॉक्स में आपके जितने भी मेल्स आए वो ये सब यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ओके, आई होप एवरीथिंग एवरीवन understand